اور پیر غفران صاحب نے بھی کہا تھا سن لو نعرہ غفران دا مردا جیل میں حرام دا انہوں نے کہا ہے اور اس کا جواب نہیں دے حرامی بندہ کیا دے گا بتاؤ نا مجھے. تو ایسے فتنوں کا یہی جواب ہوتا ہے. میں کہا جا ایک کنجرا گل کرن لگیا کنجر دماغ میں کنجر گل ہی ہونی ہے تینوں شرم تو یا نہیں پئی. تو حیرت زدہ ہوگی. حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پڑا. اور بعد میں مریدنی پوچھتی ہے کہ حضرت آپ کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تو مینارے سے چل پڑی اور میں بخارے سے چل پڑا اور نہر والے پل تے آ کے ملے دوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہنستے مسکراتے رہیں اور اللہ پاک مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز خواہشات کو قبول اور منظور فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ریئل ٹی وی. ناظرین آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے. ناظرین آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو مشرکین کی طرف سے کافروں کی طرف سے ان کو کیا تکلیفیں نہیں سہنی پڑی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں بھی دی، پاگل بھی کہا، دیوانہ بھی کہا، استغفر اللہ کیا کچھ نہیں کہا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کیا ہمیشہ. تو آج کے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ذرا سا کچھ کوئی بول دے صبر نہیں ہوتا، ڈائریکٹ گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. اور وہ مسلمان جو عالم دین ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے 10 سال مدرسے میں لگائے ہیں، وہ منہ سے گالیاں نکالے تو بات جچتی نہیں ہے. آج کی ویڈیو بھی ایسی ہے، ایک عالم دین گالیاں دے رہا ہے اور دوسرا عالم دین سن رہا ہے، اور جو سننے والا عالم دین ہے وہ اس کا کیا ریئیکٹ دے رہا ہے آج ہم نے اور آپ نے یہی دیکھنا ہے. تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب. وہ بھی تگڑے ہو جائیں جڑے کہتے بابے شاہ ہی کوئی نہیں. ہر بلی کی دشمنی اور کبھی غوث پاک کی، کبھی حضرت جنید بغدادی، کبھی باجد بستامی کی. مطلب بندے کو کتا ہونا چاہیے پر انٹرنیشنل کتا تو نہیں نہ ہونا چاہیے. سارے انہوں ہی پہ گئے ہیں. وہ جڑا الو دا پٹھا ہے مرزا جی آپ پتہ نہیں پلمبر جی کیا بلا ہے وہ. میں سمجھتا تھا یہ صرف پیو کوئی نہیں، یہ تو ماں بھی کوئی نہیں، یہ تو کھوتی دا پتر لگتا ہے میں نو. یہ تو کسی جانور کا بچہ ہے یار. جب میں حیران ہو گیا یار، ایسا یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل مطمئن کمینہ انٹرنیشنل بغیرت تو یہ لمدی کتی ہے جڑا ہر بندے نو پہ گئی ہے تو. لیکن تینوں پتہ کوئی نہیں نا، تو ایک سٹ نہیں پچانی پترا. اس واسطے اپنی زبان بند کر، بکواس بند کر. اور پیر غفران صاحب نے بھی کہا تھا سن لو نعرہ غفران دا مردا جیل میں حرام دا انہوں نے کہا ہے اور اس کا جواب نہیں دے حرامی بندہ کیا دے گا بتاؤ نا مجھے. تو ایسے فتنوں کا یہی جواب ہوتا ہے. میں کہا جا ایک کنجرا گل کرن لگیا کنجر دماغ میں کنجر گل ہی ہونی ہے تینوں شرم تو یا نہیں پئی آؤندی. اس واسطے ان لوگوں کی بھی اتنی مرمت ہونی چاہیے، اتنی مرمت ان کی بھی ہونی چاہیے. پہ جاندہ ہے بابیاں نو جناب جے میں کہتا تینوں لگ پتا جائے گا. میں کہتا ہوں اگر یہ بے غیرت اور کمینہ اور حرامی نہ ہو تو یہ ویسے ہی مر جائے اگر حلالی ہو تو. لعنتیا تجھے نہیں پتا، ویسے بھی تو انجینئر ہے، رکشے کھول کے کس تیرا تو کی نہیں بنتا ہے شعبے. مولوی اسی 10 سالوں سے پڑھے ہیں، ناشے بنائے ہوئے ہیں جو جاندیاں باندریاں لومڑیاں اٹھ کے بج بگیاں. پیوما پیرانو سار نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے، اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے. اور مرزے دیکھ رہا تو پیو نے کرنی آنے نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے؟ تماشا کرتے ہو پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو اور جڑا تواڈے پیوما نو پے گیا ہوں تسی چوپ بیٹھے ہو. اور نکلو باہر. باپا جانی جو ہے الیاس قادری صاحب اس وقت سب سے بڑے ان کے غوث وقت ہے نا، انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری سے متعلق ایک کتابچہ لکھا ہے جنات کا بادشاہ. وہ چینی جن والا، وہ چینی جن جس میں وہ واقعہ بھی ہے. اچھا اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اور واقعہ نہ صرف لکھا ہے بلکہ ان کے جو چھوٹو مولوی ہیں نا وہ ویڈیو میں بھی بیان کر رہے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی
टूटी किबला की तरफ नहीं की। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ, तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा तो वो आपकी निगाह की ताप ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। और इन तालीमात को ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक समझते हैं, हम कहते हैं ये भी फ्रॉड है। उसमें पता क्या लिखा हुआ वाकया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, वो उन्हें वुजू करवाया करता था। एक दिन उसने वुजू करवाने के बाद जो लोटा है ना, उसकी टूटी किबला रुख रखने की बजाय थोड़ी हटा के रख दी, जानबूझ के नहीं, बेध्यानी की वजह से। तो कहते हैं जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने निगाह मार के ना मुरीद को जला के राख कर दिया, उसकी रूह परवाज कर गई। वो मुरीद जो बेचारा इस उम्मीद में अपने बाबे से अटैच था कि ये मेरी हिफाजत करेगा, वो खुद तो मरा, बाबा भी मार के चला गया। हाँ जाहिर है बाबे ने कत्ल ना किया, 302 लगती है बाबे के ऊपर, हाँ ज़हन में रखिएगा। तो इनके बाबों ने इनकी आखिरत क्या बचानी है, इनके मुरीद अपनी आखिरत भी ले डूबे, बाबा भी नाल ही ला गए। तो कहते हैं उसके बाद फिर उन्होंने निगाह मारी लोटे की तरफ, तो टूटी सीधी हो गई। ये इन लोगों का, इनके बुजुर्गों का, अब तो मैं कह सकता हूं ना इनके बुजुर्गों का, क्योंकि ये तो मानते हैं ना, इनके बुजुर्गों का ये लेवल है कि वो बजाय लोटे की टूटी को सीधा करने के बंदे मार देते हैं, और फिर हमें ये बताते हैं कि आपने रसूलुल्लाह तक पहुंचना है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन बुजुर्गों का दामने करम थाम ले। तौबा तौबा तौबा, दिमाग खराब है साडा, जो अपने मुरीदों को जला के राख कर दें, यूट्यूब से गुस्ताखाना वीडियोस ना डिलीट करवा सके, उनके साथ हमने अटैच होना है, हमारा दिमाग खराब हुआ है। अब देखें इससे कितने मदनी फूल निकलते हैं। हाँ मेरा दिमाग किधर जाता है। सबसे पहला मदनी फूल तो यह है कि इनके बाबे जो है ना कत्ले न हक करते थे, 302 उन पे लगती थी, और कुरान में है जिसने किसी मुमिन को न हक कत्ल कर दिया वो हमेशा की जहन्नम में। इनके बाबे बकौल इनके, मैं नहीं कहता, बकौल इनके, हम तो उसे ज़न रखेंगे कि अब्दुल कादिर जिलानी को तो बेचारों को पता ही नहीं होगा उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, लेकिन चूंकि ये करवा रहे हैं तो जाहिर है कि फिर उसका एंड रिजल्ट यही निकलेगा कि वो अपने मुरीदों को कत्ले नाहक वाला ना सिर्फ मामला करते थे, बल्कि मुरीदों की वजह से अपनी भी आखिरत बर्बाद कर ली। जाहिर है खुद भी जहन्नम में चले गए कत्ले नाहक करके। तो कुरान का फतवा है, आज तो बाबे और 302 कटावा होते। अच्छा उसके बाद ये रिजल्ट निकला कि ये जो इनका दावा है ना कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के पासवां हैं, अमीन हैं, उनकी लेगेसी आगे लेके चल रहे हैं, ये भी बिल्कुल फ्रॉड है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एटीट्यूड ये होता था अपने साथियों के साथ? बिल्कुल नहीं। बुखारी और मुस्लिम दोनों उठा के देखें, अनस इब्न मालिक कहते हैं 10 साल तक मैंने रसूलुल्लाह को वुजू करवाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं मैं छोटी उम्र का बच्चा था, 10 साल की उम्र में मेरी वालिदा उम्मे सुलैम मुझे रसूलुल्लाह की खिदमत के लिए छोड़ के चली गई, और 10 साल मैं नबी इस्लाम के साथ रहा। कहते हैं उन 10 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नबी इस्लाम ने मुझे डांटा हो, मुझे कभी ये कहा हो कि तुमने ये काम क्यों किया, ये काम क्यों नहीं किया। वो कहते हैं कई बार नबी इस्लाम मुझे किसी काम से रवाना करते तो मैं बच्चों में खेलना शुरू कर देता। यार 10 साल का बच्चा खेलेगा ही ना। नबी इस्लाम ने कभी नहीं मुझे डांटा। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलते और मुझे बच्चों में खेलते हुए देखते तो प्यार से बुलाते, उनैस, नाम था अनस, प्यार से बुलाते उनैस, बेटा मैंने तुमने फलां काम के लिए कहा था। वो कहते अच्छा या रसूलल्लाह मैं जाता हूं। बस ना डांटा कभी, ना मारा पीटा। और तुम्हारे बुजुर्ग जो कहते हैं हम रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, हम आपको रसूलुल्लाह तक पहुंचाएंगे, पहले आप तक पहुंच जाओ। मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं। लिहाजा ये जो तुम लोग क्लेम कर रहे हो ना कि हमारे बुजुर्गों की किताबें बदल गई हैं, तो जो बातें तुम किताबों से बयान भी कर रहे हो ना बगैर बदली हुई, हमारे नजदीक वो भी कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ अगर नहीं समझ आ रही तो मैं एक और मिसाल पेश कर देता हूं। बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। इनके वो इस वक्त मीठे मीठे एक मुबल्लिग जो तारिक जमील साहब के मुकाबले पे इन्होंने लॉन्च किए हुए हैं, साकिब रजा मुस्तफाई साहब। हाय 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 हाय, वो ख्वाजा बाउल हक नक्शबंद के बारे में बता रहे हैं कि उनकी एक मुरीदनी थी। हाँ उसको बादशाह वक्त ने एक मीनारे से गिराया। हाँ और वो बुखारे में थे। वो कहते हैं कि मुरीदनी ने आखिरी वक्त में बजाय अल्लाह को पुकारने के ना वो बाबे को पुकारा।
औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं। तो आगे अल्फाज देखें इस जिम्मेदार शख्स के, ये कहता है कि जी वो बुजुर्ग आए उड़ के और उन्होंने मुरीदनी को कैच करके, हाँ उसमें अल्फाज है पकड़ के, तो जमीन पे आराम से रख दिया जब उसको धक्का दिया जल्लाद ने। हजरत शाह नक्शबंद बुखारी अलैह रहमा नक्शबंदियों के इमाम हैं। आप काबुल में तशरीफ लाए तो बादशाह के घर में काम करने वाली एक खातून आपसे रूहानी निस्बत कायम कर लेती है। जो उसकी हम मनसब थी उन्होंने उससे हसद किया और बादशाह के घर का जेवर चोरी करके उस पर इल्जाम धर दिया और गवाहियां भी दे दी। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने कोई बात सुने बगैर कहा कि इसको ले जाओ और महल की छत से ऊपर गिरा दो। खैर उसको छत पे ले गए। जब फेंकने लगे तो उसके दिल में ख्याल आया, वो किसी ने बताया था कि औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं, तो इससे बढ़कर औखा वेला हो क्या सकता है। तो उसने बुखारे की तरफ मुंह करके कहा, शया लिल्ला चू गदाए मुस्तमंद अल मदद खाहम ज़े शाहे नक्शबंद। और इतने में जल्लाद ने पीछे से धक्का दे दिया। जब वो नीचे गई तो हजरत शाह नक्शबंद बुखारी ने पकड़ के आराम से जमीन पर रख दिया। तो हैरत ज़दा होगी, हजरत आप कब आए थे? कहा तू आज चबारा आमदी मन आज बुखारा आमदम। तू चबारे से चल पड़ी थी, मैं बुखारे से चल पड़ा। और बाद में मुरीदनी पूछती है कि हजरत आप कहां से हैं? तो उन्होंने कहा कि तू मीनारे से चल पड़ी और मैं बुखारे से चल पड़ा और नहर वाले पुल पे आके मिले दो। ये तब्दील तो नहीं हुआ? ज़ाहिर है साकिब रजा मुस्तफाई साहब जब बयान कर रहे हैं तो ये वाकया तब्दील तो नहीं हुआ ना। इसके साथ तो हम ये कर सकते हैं ना सब कुछ। नहीं, ये जवाब इनका बनता है। और दूसरी तरफ बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अम्मा आयशा सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी औरत को बैत के लिए हाथ नहीं लगाया। और इनकी हालत देखें कि इनके जो पीर हैं वो मुरीदनियां कैच करते हैं। अब मैंने तो नहीं इनको कहा कि नामहरम मुरीदनी को कैच क्यों किया, ये मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं। अभी ये सोच रही थी नामहरम को कैच कर लिया। इसके बाद एक और वाकया जो बड़ा मशहूर किया हुआ इन्होंने, वो कहते हैं कि जी अबुल हसन खरकानी जो थे ना, जो बायजीद के खलीफा थे, वो खलीफा भी जाके कब्र पे ही हुए हैं। मतलब उनके मरने के बाद तो वो पैदा हो रहा है बंदा। तो महमूद गजनवी जब सोमनाथ पे हमले कर रहा था तो उसको कामयाबी नहीं हो रही थी, तो आखिरी दफा उसके पास अबुल हसन खरकानी का एक कुर्ता था जो उसने अल्लाह के हुजूर तवस्सुल के तौर पर पेश करते हुए दुआ की और उसे फतह होगी। और रात को ख्वाब में बाबा जी आ गए और बाबा जी नाराज हैं। वो कहते हैं कि तूने मेरे कुर्ते की इतनी कम कीमत लगाई है, अगर तू ये कुर्ता अपने हाथ में पकड़ के अल्लाह से ये दुआ करता कि हिंद की सरजमीन में क़यामत तक कोई काफिर ना हो तो ये सारे मुसलमान हो जाते। हजरत अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सजादा नशीन थे। इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को। जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की? कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तो मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी। ये तूने क्या दुआ मांगी है? ये तालीमात बताते हैं और फिर सुभान अल्लाह पढ़ते हैं। और ये वाकया तज़किरतुल औलिया के अंदर भी लिखा हुआ है शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने। अब ये वाकयात बयान करते हैं तो हम इसके मुकाबले में इन्हें बताएंगे कि भाई अगर इन कुर्तों से कोई फर्क पड़ता तो इस कायनात में सबसे अजीम कुर्ता तो रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही मुस्लिम में हदीस है, अस्मा बिनते अबी बकर ने नबी इस्लाम का किसवानी त्यालिसी एक काला जुब्बा वो निकाला और उन्होंने बताया कि ये वो जुब्बा है जो नबी इस्लाम पहना करते थे और इसके धोवन को हम मरीजों के लिए शिफा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नबी इस्लाम का कुर्ता मुबारक जो सही तबर्रुक भी है, जिससे सहाबा कराम ने तबर्रुक भी हासिल किया, वो कुर्ता जब नबी इस्लाम खुद पहनते थे उस कुर्ते को देख के तो
मुशरिकीन अरब ने इस्लाम कबूल नहीं किया, और उसके बाद रोमन्स और पर्शियंस के खिलाफ जब सहाबा कराम ने जंगें लड़ी हैं तो वो कुर्ता तो नहीं लेके गए, जिस तरह ये अबुल हसन खरकानी के कुर्ते से दुआ किया, उन्होंने तो रसूलुल्लाह के कुर्ते से कोई दुआ नहीं की है। वहां तो 8,500 सहाबा और ताबीन शहीद हुए हैं जंगे कादसिया में, हाथियों के नीचे भी आए कई, तब जाके वो पर्शियन अंपायर जो है वो मुसलमानों के पास आई है। और जंगे यरमूक में भी हजारों सहाबा और ताबीन शहीद हुए हैं, तब जाके रोमन अंपायर की कमर टूटी है। उधर तो कोई कुर्ते नहीं लेके गए, सब कहानियां बनाई गई हैं। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो जो आपने सुनी कि कैसे तनकीद हो रही है, एक आलम दीन को गालियां दी जा रही हैं, और वो आलम दीन इंजीनियर अली मिर्जा साहब हैं, ये कुछ गलत भी बयान नहीं कर रहे, जो उनकी लिखी हुई बातें वही बयान कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने बयान किया था कि एक लोटा जो था वो लोटा थोड़ा सा काबे की रुख से टेढ़ा हो गया, तो उन्होंने बुजुर्ग ने नजर डाली और उस बंदे को ही जला दिया। तो अल्लाह के बंदो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही मशहूर हदीस है कि मस्जिद नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं और कुछ सहाबा भी चंद बैठे हैं, सारे सहाबा भी। तो एक बद्दू, एक काफर आता है और मस्जिद नबी के आते में पेशाब कर रहा होता है। जब वो पेशाब कर रहा होता है तो सहाबा कराम को बहुत गुस्सा आता है कि ये मस्जिद के हाथे में पेशाब क्यों कर रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को रोकते हैं कि इनको कुछ नहीं कहना इस बंदे को। वो तसल्ली से पेशाब करता है, जब पेशाब करता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास बुलाते हैं और उसकी सलाह करते हैं। तो जब मस्जिद के अंदर पेशाब करने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कोई सजा नहीं दी, उसको जलाया नहीं, बल्कि सलाह दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वली है, वो अल्लाह का जो वली है, वो सिर्फ लोटा जरा सा काबे की तरफ से टेढ़ा हो गया और उसको जान से ही मार दिया, तो ये बात हजम होने वाली नहीं है। ये बात कहाँ लिखी है, ना ये बात साबित है, या ना ये बात मानने वाली है। तो अल्लाह के बंदो, ये कहानियां, इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां होती हैं, ये बयान करना ही फजूल की बात है। बंदे की अक्ल, एक हदीस में आप बयान करते हो कि मस्जिद नबी में पेशाब कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया था, तो दूसरा आप वली का वाकया सुना देते हो कि उन्होंने लोटा टेढ़ा हो गया तो बंदा मार दिया। इस तरह की ये तो सारी कहानियां। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी थी और बहुत कुछ सीखने को मिला इंजीनियर अली मिर्जा साहब से। और मुझे तो इनकी वीडियो सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा बुरा लगा है किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं उलमा कराम के लिए। अगर बेलफर्ज अगर सामने वाला कुछ गलत बात भी कह रहा है तो इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए कि इस कदर गलीज गालियां आप मस्जिद में बैठे हुए, या बिलफर्ज अगर मस्जिद में नहीं भी बैठे हुए, किसी महफिल में बैठे हुए, कितने ही लोग वहां पर सुनने वाले हैं, उनके जहनों पर क्या असर पड़ेगा, तो वो आपकी बात को किस तरह से अच्छा मानेंगे कि ये बंदा तो खुद गालियां देने वाला है, तो ये किसी की इस्लाह कैसे कर सकता है। अल्लाह का पैगाम देने का तरीका ये तो नहीं है कि किसी को इस कदर गंदी लैंग्वेज यूज की जाए। मुझे तो इनकी गालियों पे बहुत बुरा लगा। आपको कैसा लगा, आपको इस बारे में क्या राय रखते हैं, आप भी जरूर कमेंट बॉक्स में इजहार कीजिएगा इस बात का। और उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई करते रहिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। और नाजरीन, इस वीडियो का ये मेरा ख्याल 40 या 50 मिनट की वीडियो है, इसका कुछ हिस्सा हमने अपलोड किया, तो इंशाल्लाह इसका दूसरा हिस्सा कल अपलोड करेंगे, कुछ बातें कल करेंगे ताकि आपकी भी इस्लाह हो, हमारी भी इस्लाह हो। मकसद ये नहीं है कि किसी भी मसलों को टॉर्चर करना या किसी की मसला के खिलाफ बुरा भला करना। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए, ये भी एक आलम दीन है। तो गालियां निकाल रहे हैं और सुनने वाला भी आलम दीन है, वो हदीस से बात कर रहा है, तो अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।